healthy, a workshop for healthy kids, healthy children. So, this is mainly organized for people, for parents as well as kids. बच्चों के लिए और parents के लिए साथ में organize किया गया है. With the motive, the purpose is to know what is health exactly. आपके हिसाब से health क्या है? कोई मुझे बताना चाहेगा? According to you, what is health? Online, offline, anyone can tell me. What is health आपके हिसाब से? Yes. Full time energy रहना, Full time energy, stamina अच्छा रहना. What else? Anyone online can also just unmute and tell me. Yes, children, you can also participate. You can also interact. What is being healthy? Health जब हम कहते हैं, it refers to what? आपके दिमाग में पहले क्या आता है जब हम health कहते हैं? So what comes to your mind first? Eating healthy food. Okay? Eating healthy food. तो सबसे पहले, sorry, yeah? physically and mentally being. That is what I wanted. Physically and mentally. So, healthy, being healthy. Can you please mute your phone? Being healthy is not just about being physically healthy. Mental health, emotional health is equally important. तो आपको लगता है ये सब खाली फूड से मिलता है? Is it only about eating? Is it just that food आप बराबर खाओगे, एकदम healthy way में खाओगे तो that is going to keep you healthy? No. If that is the case, it's a misconception. ये एक भुलेखा है. As parents हम लोग क्या करते हैं? हम हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, give them our best. Okay? We keep trying that. But then somewhere we forget that it is not just food. खाली food नहीं है. It is also about sleep and workout. To be healthy, whether it is for parents या for kids. आज हम लोग खाली बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बच्चों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, emphasize करूँगी. But then खाली आप खाने से, just by having healthy food, you cannot be healthy. You need to also take care of your child's physical activity and sleep. Equally important. तो आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा पहले sleep and physical activity के बारे में बात करूँगी, so that you get an idea. Because usually whenever we talk about health, जब हम सोचते हैं health के बारे में, कहीं पे भी पढ़ते हैं, we just talk about food habits. जंक फूड खाओ, नहीं खाओ, ये खाओ, वो खाओ, फ्रूट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ. ओके, दैट इज ऑल करेक्ट. हम लोगों को कई हद तक we all also are aware of it. We have a good knowledge of what food to eat, what food to not eat. क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. हम सबको एक हद तक ये पता होता है. ओके, बट इन स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा मुझे? टेल मी हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप अकॉर्डिंग टू यू. क्या ऐसा है कि आप अगर बहुत अच्छा खाना पीना खा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन स्लीप अगर उनको कम भी पड़ रही है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि दे कवर अप द स्टडीज, दे कवर अप द होमवर्क, थोड़ा कम भी सोएंगे चलेगा, खाना अच्छा खा लिया तो दैट इज फाइन. इज दैट फाइन अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू से? नो. सो हाउ डू यू हेल्प देम टू स्लीप बेटर? आपके हिसाब से वो अच्छा सोएंगे कैसे? यस बेटा? दे शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड. हाउ विल दैट हैपन? How do you connect stress to sleep better? You're absolutely in the right way. Tell me, how will you connect sleep and stress? With the additional homework and they can do or more than their power, so they can take stress from it. Right. So basically, बच्चों को stress किससे generate होता है? It is from two things. One is their academic pressure and उसके ऊपर जो academic pressure की वजह से parents जो pressure देते हैं. It is very natural. Even I am a mother, even I have gone through all this. It is very natural कि अपनी पेरेंट आप बिल्कुल ऑब्वियसली कहीं सो तो नहीं सकते, नैप तो नहीं ले सकते. बट एज किड्स, जब भी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेन, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट दे गो थ्रू. सो डोंट यू थिंक दे आल्सो नीड दैट पावर नैप? एक आधे घंटे की फ्रेंड्स एज वेल एज पेरेंट्स का ऊपर से और भी. इट इज थ्रू होमवर्क, थ्रू सबमिशंस, थ्रू कॉम्पिटिशन, सब बहुत बढ़ गया है. इसके ये सब के चक्कर में व्हाट हैपेंस, वी कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्लीप. हम सोचते हैं कि कम सो जाएंगे चलेगा,
लेट सो होमवर्क करके सो. This is what as parents we say, but that doesn't work. Remember, as adults हम लोग अगर 7 घंटे की भी नींद सोते हैं तो that is sufficient. But as kids, they definitely need a good 8 as kids, as children, they need a good 8. उनको भी बहुत जरूरी है. Okay, we allow kids to sleep when they are small. हम उनको जबरदस्ती सुलाते हैं. But as they keep growing, हम सोचते हैं कि नहीं, सोने से अच्छा पढ़ाई कर. स्कूल से आया नहीं कि what is the first thing we ask them? आज क्या होमवर्क मिला? आज क्या किया? Instead, you can just allow them to relax. Especially this happens during exams. Already children are stressed. बच्चों को naturally stress develop होता है, but they are not able to show it up as stress. वो स्ट्रेस है, वो उनको समझता नहीं है. When they become adults, when they go through that adolescent stage या even later in life, adulthood की तरफ नजदीक जाने लगते हैं, that is the time when they realize कि हाँ स्ट्रेस क्या होता है. तभी तक जो भी स्ट्रेस होता है, they just take it lightly. They actually don't realize कि it is stress. Okay, so how do you handle this as a parent? As a parent, take it lightly. Okay, exams and submissions and competition and I agree, everything is there. थोड़ा push आपको करना पड़ता है, but वो थोड़ा leverage देना भी बहुत ज़रूरी है. You need to give them that space wherein they relax, they take it easy and they don't take it up as stress, बल्कि happily उसको enjoy करते हुए करें. Even if they are not winning, even if they are not scoring very well, but at least they are preparing themselves as a good, a person for future. Okay, उनकी mental abilities at least develop हो रही है. That is what we need to understand. तो ये सारी चीजें when the child sleeps, grow. ये सब develop होता है when the child sleeps. तो सोने की चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Quality sleep. When I say 8 to 10 hours, okay, try to make them sleep 8 to 10 hours. अगर if it is not possible, 8 hours तो बहुत ज़रूरी है. Besides that, how do you see to it that उनको quality sleep मिले? Quality sleep के लिए see to it कि वो लोग सोते समय एक तो मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मीडिया के नज़दीक नहीं है. Just put them off media. If it is not possible for more than half an hour to minimum try कीजिए. Just try. Children, you should yourself try this. Just half an hour before the sleep, go off mobile or any other, TV वगैरह सब कुछ. Maybe if you want, you can just listen to some music. That might help you for good sleep. As parents, आप क्या करेंगे? You can just make a habit to the kids कि वो अपने पैर के नीचे हल्का सा oil massage करके सोए. It can be any oil, preferably तिल oil और सरसों का तेल, mustard oil और sesame oil. Preferably, this will help them with good sleep. उनके शरीर की पूरी थकान हट जाएगी and they will be able to sleep well. Or you can also give them warm milk before they sleep. If a child likes turmeric milk, हल्दी वाला दूध अगर child को पसंद है आपके बच्चे को, give them. Even if it is half a cup, that's fine. Milk helps as a tranquilizer, serves as a tranquilizer. Tranquilizer मतलब आपको वो और अच्छी नींद देने में help करता है. So try giving them just half a cup of milk, okay, before they sleep. So this is how you can help them with their sleep. Besides that, sleep से related और एक दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगी. बच्चों को कोशिश करके खुद उठाएं. Instead of they waking up to alarm जब भी बजता है ना, वो एकदम से आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है. Okay, तुरंत कट ऑफ करता है. So don't do that. Instead, आप बच्चों को खुद उठाएं and बच्चे पेरेंट्स को भी कभी उठाते हैं तो even you should be doing that. कभी भी उठाकर ऐसा ना बोले वो तो जल्दी लेट हो रहा है, तो जल्दी लेट. Never do that. Even if it is getting late, आराम से उनको उठाएं. When the kids are very small, आपको पता है उनके पास काफ़ी टाइम है उठ के तैयार होने के लिए. या if it is a weekend, they have lot of time. If it's a vacation, try to do sleep talk with them. You know what is sleep talk? Anyone has heard about sleep talk? Sleep talk वो होती है जो आप बच्चा नींद में जा रहा है तभी करते हो या बच्चे को नींद से उठा रहे हो तभी करते हो. एक
वंडरफुली ऑन किड्स, स्पेशली छोटे बच्चों पे बहुत वंडरफुली काम करता है. सो स्लीप टॉक में आप बोलोगे क्या? स्लीप टॉक में यू गिव ऑल द एफर्मेशंस. आप जो अपने बच्चे को बनता हुआ देखना चाहते हो, या आपके बच्चों की जो विश है वो फुलफिल होती हुई देखना चाहते हो, या इन जनरल वॉट एवर यू वॉन्ट देम टू बी एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, वो विशेस जो आपको चाहिए वो उसके सामने आप उसको सहलाते हुए रिपीट कीजिए. वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा. इवन इफ द चाइल्ड डजंट रियलाइज वो सो गया है या वो उठा नहीं, अभी भी सोया हुआ है, वो उसके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है. दैट इज नॉट अ स्लीप टॉक एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स. ओके, ट्राई दिस. दिस वाज ऑल अबाउट स्लीप. किसी को कुछ स्लीप के बारे में मुझे और पूछना है तो बताओ. Yes, any questions on sleep? Okay, so I move further with physical activity. Eating part is last में रखने वाली हूँ because eating concept is very huge and इसमें बहुत सारे doubts भी आते हैं, and in general eating का food का concept usually लोगों को clear होता है. Okay, so workout. How important is workout? Physical activity. When I say workout, I really don't mean कि कुछ I just mean a proper physical activity. So बच्चों के लिए क्या physical activity in general होती वो बताइए पहले. Sports, exercise. Yes, kids. Sorry. Story book physical activity में नहीं आएगी. It's a leisure time activity which is also very important. Story books आपने कही तो मैं कहना चाहूँगी. Story books should be read out. Stories should be read out while sleeping. Best and even other leisure time पे जब भी फ्री होते हैं बच्चे उनके लिए story books story read करना very important. Yes, kids. Playing physical activity में playing. Yes, और drawing, listening music. Drawing, listening music again all going to leisure category. Free time work, hobby developing. फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता. ये सारी चीजें हम लोग आराम से एक जगह बैठ के करते हैं. बट डांसिंग ऑफ कोर्स इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी. कुछ बच्चों को डांसिंग बहुत अच्छा लगता है. दे जस्ट प्ले म्यूजिक एंड दे डांस. सो दैट इज अ फिजिकल एक्टिविटी. लाइक वी हैव over here Gianna, my little cute fan, who is very fond of dancing. So yes, so these are few of the physical activities. बच्चे स्कूल में भी जब भी जाते हैं, there is lot of climbing up and down. Yes. Yes, कोई स्कूल में it is like climbing up 5 floors, 6 floors, coming down again for assembly, going up again to the class, coming down for sports, going to library, going to laboratory, going to the canteen. There are many activities. There is much of walking that happens in the school, right, kids? बच्चों होता है या नहीं है? But never take it negatively. It is always good. आप जितना अपने ये पैरों को चलाओगे, उतना it is going to help you in future. I know it gets tiring as parents. आप लोग उनको कभी भी इस चीज़ के लिए डिस्करेज मत करना कि ओ मेरा बच्चा बहुत थक जाता है, इतने स्टेप्स चढ़ता है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, स्कूल वाले ऐसे करते. नेवर कंप्लेन अबाउट दैट. आजकल बच्चों को स्कूल में उतना स्पोर्ट्स नहीं खिलाया जाता है जितना पहले खेलते थे. और दे आर गिवन एन ऑप्शन. Only students, only children who are good in sports, they are allowed to play. Rest of them keep sitting in the classroom. So let them get into some physical activity. Let it be karate, let it be dancing, let it be jogging, let it be any kind, dancing or whatever they like. Which physical activity is very important. If no other activity is there, allow them to play. It's very important for them to complete their submissions, complete their homework, but please try to understand it is equally important कि they should have that physical activity. आप जब भी तक उनको थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करने नहीं दोगे, लोगों से मिंगल होने नहीं दोगे, फिजिकल एनर्जी उनकी मतलब उनको वो थकावट नहीं आने दोगे. कौन सी थकावट? जो खाली उनको स्कूल से मिली है नहीं, स्कूल से साथ में थोड़ा स्ट्रेस भी कैरी करते हैं, अननोइंगली भी थोड़ा स्ट्रेस कैरी करते हैं. सो वो उनका जो प्लेइंग टाइम होता है, मिंगलिंग अप विद द फ्रेंड्स एंड
enjoying, fighting, नीचे गिरना, socializing, इमोशनल ट्रॉमा जो गुजरता है, फाइट करके और या चिढ़ना या एक को पार्शियलिटी होती है, फ्रेंड्स के बीच में वो सब बहुत चलता है, when you play in the group, वो सब आजमाने दीजिए उनको। These skills will help, these are life skills. This will help them to develop themselves, their personality. Adulthood में जाके ये सारी चीज़ें काम आएगी। क्या हम as kids ये सब नहीं किए हैं? हम नहीं गुजरे ये सब से। Even I understand कि academic pressure हमारे टाइम में और अभी में बहुत फर्क है। I completely understand that. But we also need to understand कि we need to give them their space, वो जो खेलने का टाइम है, not with the mobile in their hand, not with the video game, but बाहर जाकर, with interacting with the people. It's very important. उसको miss out नहीं कीजिए. Even if they have exams, you should be a very lucky parent if your child tells कि मुझे बाहर जाके खेलना है. Very few kids insist on going and playing out nowadays. बहुत कम बच्चे होते हैं जो आजकल बोलते हैं कि हमको बाहर जाकर खेलना है, घर के बाहर जाकर खेलना है. Most of them, especially thanks to pandemic, most of the kids are inside the house. पेरेंट्स अभी भी उनको बाहर नहीं निकालना चाहते. देयर आर द ओपिनियन कि नहीं, कोविड रिस्क है, कोविड रिस्क है, बाकी सब जगह घुमाएंगे, खिलवाएंगे नहीं. आई नो सच पेरेंट्स, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. कोविड आएगा जाएगा सब होएगा, ऐसी हजारों बीमारियां हैं दुनिया में, वो फेज निकल चुका है. दैट पैंडेमिक इज गॉन. डोंट वरी अबाउट इट. आपके बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप होएगी विद फूड, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी. जब तक उनका शरीर थकेगा नहीं, जब तक वो बाहर का एनवायरनमेंट, मिट्टी, हवा, ये सब से एक्सपोज नहीं होंगे, दे विल नॉट रियलाइज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज, व्हाट द इम्यूनिटी इज. तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो. लेट देम फाइट विद देयर फ्रेंड्स, लेट देम गेट इमोशनल, लेट देम डील विद इट. बहुत सीरियस है तो यू कैन इंटरफियर, अदरवाइज लेट देम डील विद. फिजिकल एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे. So as I told you, physical activities से not only child develops as physical growth ही नहीं, mental skills, social skills, emotional skills भी develop होती है उसमें. And not needed, ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है. Metabolism, eating capacity, digestion, फ्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन वगैरह. आजकल बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फूड दैट दे ईट. ओके, बहुत मेजरली क्या खाते हैं बच्चे लोग बहुत ज़्यादा? वी आर नाउ स्लोली गेटिंग इनटू फूड. यस, जंक फूड, राइट, जंक फूड. व्हेन वी स्पीक अबाउट जंक फूड, मेनली उसमें क्या आया? वन इज ऑल दिस सिंथेटिक मसालास, मैदा, oil, majorly 3 things. And then of course when you go for the sweets, it is sugar. क्या आपको लगता है धार आपको गुड़ में बना के दिया जाता है, डेट्स में बना के दिया जाता है? Definitely not. Even the oil that they use, is it a good proper conventional देसी घी का खाना या? Obviously not. We don't even have to mention that. So I won't say kids especially. I'm not anti junk food person. मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको junk food खाना ही नहीं है. Enjoy, eat whatever you want. But when you're eating, try to strike that balance. आपने जो खाया पिया है, उसके साथ आपको अगर वो खाना है, तो you have to also see to it that it has to go off from your body. So what should be your concept? Eat and delete. Delete का मतलब समझते हो ना? कंप्यूटर की जनरेशन है, सब समझते हो ना? What is the shortcut? Keyboard shortcut for delete. Cut. What is the shortcut for cut? Control X. Right? Right or not? Yes? Yeah. So आपने जो खाया है उसको Control X, उसको delete करना बहुत जरूरी है आपके सिस्टम से. Even if you are fond of eating any kind of food, go for it. आपको अभी से मैं बचा के इससे अवॉइड करने के लिए नहीं कह रही. Just go for it. खाओ आप लोगों को जो भी पसंद है. But moderation is the key word. Eating anything in moderation is very important. Even if your parents, यहाँ पे आप
आपके पेरेंट्स भी हैं, आप भी हैं, ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर पेरेंट्स ज्यादा बाहर का खिला रहे हैं तो यू टेल देम टू स्ट्राइक द बैलेंस। हाउ डू बैलेंस? अगर आप ज्यादा बाहर का, ऑब्वियसली आप हॉलीडे पे जा रहे हैं तो यू कैन नॉट कंट्रोल मच, except that you can definitely go on with fruits and salad. But then आप घर पे जब भी कर रहे हो, रोज का बाहर का खाना avoid that. Eat whenever you want, but then रोज नहीं खाना. Don't make that habit. As parents, as kids, आपको एक दूसरे को वो चीज समझ के चलिए. Don't be very stubborn kids when it comes to food. कि मुझे यही खाना है, यही खाना है. I'm sure हर पेरेंट को चाहिए कि उसके बच्चे को जो अच्छा लगता है वो खिलाए. बट उसका फायदा मत उठाइए. एज किड्स आप लोग उस चीज़ का फायदा मत उठाइए. एज पेरेंट्स उतना लाड आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है. उनको अगर आप कुछ ऐसा बना के दे रहे हो तो साथ में यू नीड टू बैलेंस इट विथ समथिंग दैट इज हेल्दी. अलाउ योर किड्स टू कुक विथ योरसेल्फ. कुक विथ यू. उनको कटिंग में लगाओ. लेट देम गो आउट एंड बाय सम वेजिटेबल एंड कट. गलत लाएगा, महंगा लाएगा, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. But then it is a skill that needs to be developed. आजकल के ज़माने में it is not just about girl cooking and boy sitting and eating. No. दोनों को खाना बनाना भी आना चाहिए. So as kids, if you are not getting into too much of mainstream cooking, बहुत खास दाल, रोटी, भाजी आप नहीं भी बना रहे हो, तो भी नॉन स्टॉप कुकिंग आपको आनी चाहिए. नॉन स्टॉप में नॉन फ्लेम, नॉन गैस कुकिंग तो कम से कम आनी चाहिए. लाइक स्प्रेडिंग सैंडविचेस फॉर योरसेल्फ. बिस्किट्स को आप प्रेस करके कुछ अच्छा स्नैक आइटम काइंड ऑफ बना सकते हो. यस, ऐसे देयर आर मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू. यू कैन मेक योरसेल्फ, यू कैन मेक चीज सैंडविचेस. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. बिसाइड्स इफ़ यू आर कुकिंग, इफ़ यू आर इन अ रीजनेबल एज जहाँ पे आप गैस वगैरह चला सकते हो, गो फॉर छोटा मोटा कुकिंग. मेक खिचड़ी फॉर योरसेल्फ, नॉट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. मेक पुलाव बना सकते हो. जस्ट nowadays there are so much YouTube is there. चाइल्ड कुकिंग का देखिए, चाइल्ड कुकिंग में क्या क्या आता है. गो फॉर इट, ट्राई करो. एंड एज पेरेंट्स आपने उनको अलाउ करना चाहिए. डोंट गो नियर द गैस, डोंट गो टू द भाजी मार्केट. तुम ज़्यादा पैसा दे के आओगे, तुम बार्गेन नहीं करोगे. अलाउ दैट, जस्ट अलाउ दैट. जब तक उतना फ्रीडम, उतना लेवरेज नहीं दोगे, दे विल नॉट लर्न. उनको सीखने के लिए गलती करना ज़रूरी है. सब रेडीमेड मत कीजिए. अलाउ दैम टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स. पहली बार खराब बनाएंगे, शायद नमक ज़्यादा होगा, मिर्ची ज़्यादा होगी, या कम होगा या नहीं होगा, कड़वा होगा, जला देंगे. एवरीथिंग इज फाइन. इवन वी हैव गॉट थ्रू दिस स्टेजेस. उसको मत भूलिए. हम लोग जैसे अभी हैं, हम लोग एवरी एडल्ट, मैं खाली आप लोगों को नहीं बोल रही, इवन माई सेल्फ, हम अभी जैसे हैं, हम अपने बच्चों को कम उम्र में इस तरह से होने का एक्सपेक्ट करते हैं. वी एक्सपेक्ट देम टू बी एज वी आर नाउ. जैसे हम अभी हैं, जैसे हम अभी डिसिप्लिन है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे ही हो. शायद हम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे, बट हमें चाहिए कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट है. हाउ? बहुत कम चांसेस होते हैं. दैट इज हेरिडिटरी यार. इतना समझना पड़ता है हमें. एंड इवन इफ इट इज नॉट हेरिडिटरी, हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है. सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी वेरी वेल अंडरस्टूड. अच्छे से आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है. खाना पीना ऐसा दीजिए विच इज नरिशिंग. स्टेपल फूड. व्हाट इज स्टेपल फूड? व्हाट इज स्टेपल फूड? किड्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्टेपल फूड? क्या खाते हैं आप लोग रोज घर में? Yes, grains, yeah. क्या रोज जनरली व्हाट डू यू ईट? आपकी थाली में आप क्या डाल के खाते हो? राइस, रोटी, दाल, भाजी. ओके, सो बेसिकली फॉर इंडियंस आवर स्टेपल फूड इज राइस, रोटी. नाउ ये राइस रीजन्स के हिसाब से इट डिफर्स. रोटी ऑल्सो डिफर्स इन समवेयर. इट इज भाकरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाकरी. सबका स्टेपल फूड अलग अलग है, बट द बेसिक इंडियन स्टेपल फूड इज राइस, दाल, रोटी, सब्जी. इससे अपने बच्चों को दूर मत कीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी एंजॉयिंग दिस फूड. डोंट मेक देम यूज्ड टू मैदा 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 एंड ऑलवेज मैदा. एक दिन पाव भाजी खिला दी, एक दिन बर्गर खिला दिया, एक दिन पिज्जा खिला दिया, एक दिन कुछ और खिला दिया. इफ यू थिंक वाइजली, आप
हर एक ये चीज़ वीट के साथ खा सकते हैं। अगर आपको पाव खानी भी है, आपको ऐसा लगता है कि पाव में टेस्ट है, तो ठीक है, दो आप उनको, बट इट्स स्ट्राइक अ बैलेंस। यू नो हाउ लॉन्ग मैदा टेक्स टू डाइजेस्ट किड्स, आपको पता है 7 दिन लगते हैं मैदा को आपके सिस्टम में से निकलने के लिए। 7 days इट रिमेन्स इन योर इंटेस्टाइन। एंड एनी फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड स्टिक्स टू योर इंटेस्टाइन। यू सीन फेविकॉल ड्राई होकर कैसे चिपक जाता है टू द बॉक्स, टू द कंटेनर, उस तरह से इट स्टिक्स टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो योर लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फूड उधर रह के उतने दिन उसके बाद डाइजेस्ट नहीं होता, वो सड़ जाता है। खाना या तो डाइजेस्ट होता है या तो सड़ता है। देयर इज नो थर्ड थिंग दैट हैपेंस टू योर फूड। सो इफ यू taking all these foods, maida I'm specifying too much because it is happening these days कि बच्चे बहुत ज़्यादा मैदा एंड फ्रोजन फूड वगैरह खाते हैं। घर में आलू को आप पील के एज फ्रेंच फ्राइज उसको पका के बाहर रखो। See what happens to it without preservative, without freezer. चेक कर लीजिए खुद, 1 हफ्ता बाहर रखो। I need not tell you क्या होता है, आप लोग इतने समझदार हो। All the kids here and parents are very aware of it. So don't go too much of it. इसमें कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, it is just taste. Still I am telling you खाओ, nothing wrong in eating. Moderation is very important. Moderation is very important. So उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आप जो भी खाते पीते हैं, बच्चों को जो भी खिलाते पिलाते हैं, मॉडरेशन में खिलाएं। When we are talking about food, there is one more thing that I would like to say. Too much of these packaged foods like ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप अगर खाओगे तो आप एक चीज़ समझिए, इस पर रिसर्च भी किया गया हुआ है। The masalas that are used on it are not good for lungs. Even the peri-peri masala that is used on French fries, it is also commonly available, सब जगह available होता है। बच्चों को अच्छा लगता है, just let them eat when they are eating out। जब ये कुछ खा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, तभी खाने दीजिए। उनको आदत मत लगाइए रेगुलरली खाने की, ओनली बिकॉज इट इज टेस्टी। ये टेस्टी फूड क्या करते हैं, हाउ इट अफेक्ट्स योर सिस्टम, आई विल टेल यू। सबसे पहले ये आपके लंग्स को खराब करते हैं इन द लॉन्ग रन। ओके, आई हैव सीन मैनी किड्स जिनको इसकी बहुत आदत है, ये सारे पैकेट फूड खाने की। अभी वो बच्चे बड़े भी नहीं हुए हैं एंड दे आर ऑलरेडी फेसिंग लंग्स का इशू, रेस्पिरेटरी इश्यूज, एलर्जीज। सो काइंडली डोंट गो फॉर इट पेरेंट्स। आप लोग सब एडल्ट्स हो, आप लोगों को इतना समझना बहुत ज़रूरी है। यू नो एक कॉमन चीज़ जब मैं देखती हूँ, व्हेन आई टेल दिस टू पेरेंट्स, जैसे सुनता ही नहीं है, क्या करें, खा लेता है, उनको पैसा कौन देता है, उनको खरीद कर कौन देता है। आपको जो चीज नहीं करानी है बच्चों से, आप उसको किसी भी तरह नहीं करवाते हो ना। सो इट्स अप टू यू, आपको उनको लेके देना है या नहीं देना। गिव देम अ बेटर ऑप्शन। घर पे बना कर दीजिए कुछ फ्रेश, इवन इफ इट इज जंक फूड, इवन इफ इट इज तला हुआ फूड, घर पे बना के दीजिए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अरे आजकल आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको इनोवेटिव तरीके से हर एक चीज बना के मिलती है। इवन इफ यू गिविंग बर्गर, ठीक है, मैदे की ब्रेड आप बाहर से ले आए, आप बर्गर टिक्की घर पर बना के दीजिए, कितनी मुश्किल है। आप एक बार YouTube खोलोगे तो आपको हजारों मिलेंगे ऑप्शंस घर पे। आलू टिक्की, वेजिटेबल टिक्की, यू कैन मेक इट हेल्दी इन मेनी वेज, राइट? यू वर शेयरिंग समथिंग। एक्चुअली मैगी भी ना वीट में आता है। एग्जैक्टली, मैगी भी वीट में बनती है। सी, पैंडेमिक में हमने सब कुछ घर पे एक्सप्लोर किया है, राइट? सब कुछ घर में बना, बट अभी कौन बनाएगा, मिल रहा है ना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, लीजिए बाहर से। आई से ओनली वन थिंग, मॉडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन में आप कुछ भी कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आप एक्सेस कोई भी चीज़ का करोगे दैट इज गोइंग टू हार्म। और ये सारे जो आउटसाइड ईटिंग जितनी भी है ना, ओबेसिटी तो है ही है, बच्चों का वजन तो बढ़ने ही वाला है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज बच्चों को उतनी फिजिकल एक्टिविटी मिलती नहीं है जितना
ओके, बैलेंस कर रहे हो फिर भी खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फाइबर ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। व्हाट इज फाइबर टू बच्चों? व्हाट इज फाइबर? फाइबर कहाँ से मिलता है? ओट्स। ओट्स, ओके, बच्चे शायद इतना ओट्स नहीं पीते हैं, बट देन यू शुड हैव इट, यू शुड हैव इट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है, उसको अवॉइड मत कीजिए, खाइए उसको। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों के लिए अ बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एडल्ट हम लोग अगर सोचें कि हम कार्ब्स हटा दें, बच्चे मोटे हैं बहुत, हम उनको कार्ब्स ना दें, बच्चों के साथ वो नहीं करना। उनका सिस्टम अगर आप चाहो तो वो बैलेंस करता है सब, इट बैलेंसेस इट वेरी वेल। तो उनके लिए कभी भी कार्ब्स या फैट्स या शुगरी चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। गिव देम एवरीथिंग, बट ऑल्सो सी टू इट कि दे वर्कआउट एंड गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी, जिससे वो इसको बैलेंस कर सके, इसके साथ डील कर सके। ओके, स्टेपल डाइट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, एज पेरेंट्स एज किड्स बोथ। थोड़ा सा आपका स्टेपल डाइट ज़रूर लिया करें इन एनी फॉर्म। किसी को रोज़ खिचड़ी खाने की आदत होती है, ज़रूर दीजिए। दही चावल की आदत होती है, ज़रूर दीजिए। रोटी गुड़ की आदत होती है, ज़रूर दीजिए। इसमें कभी सैक्रिफाइस नहीं कीजिए, इसमें कभी शर्म भी मत कीजिए, उसको हमेशा एक इम्पोर्टेंस दीजिए। स्टेपल डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू as adults also and as kids also। स्टेपल डाइट को कभी भी मत इग्नोर कीजिए, आपके सिस्टम में बसा हुआ है, उसको हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। कभी भी कोई फूड को डिसलाइकिंग मत बताइए, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बच्चे उसको अडॉप्ट करें। एज पेरेंट्स आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, मत खाओ, बट इतना उसका डिसलाइकिंग मत बताइए कि बच्चा खाना ही ना चालू करेगा। अरे आपको नहीं अच्छा लगता, शायद उसको अच्छा लगेगा, हर एक का टेस्ट अलग होता है। हाँ, सी देयर आर फ्यू पीपल जिनका टेस्ट बड्स बचपन से ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली कोई टेस्ट उनको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इवन एज ग्रोन अप एडल्ट्स हम लोगों को कोई टेस्ट अच्छे ही नहीं लगते। किसी को दही दूध वगैरह इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बचपन से वो लोग उनको खा ही नहीं पाते। दैट इज फाइन, दैट इज बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट अलाइन्ड, देयर इज सम सिस्टम दैट इज नॉट अलाइन्ड, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट देन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहले खाता था बट अभी आप क्योंकि हमेशा नहीं, मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता, मुझे तो नहीं, वो आपको कॉपी कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि उसको नहीं अच्छा लगता, आप उसको छुप के खिला दोगे वो चीज़ वो खा लेगा। इफ यू डोंट टेल दैट इट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज जस्ट दैट ही इज इमिटेटिंग, शी इज इमिटेटिंग यू। सो नेवर शो डिसलाइकिंग टुवर्ड्स एनी फूड इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। एंड किड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि टू ट्राई। एक बार ट्राई नहीं करोगे, ट्राई करके देखिए। समटाइम्स कोई फूड आपको इतना पसंद आएगा, कोई सब्जियां ना शक्ल से बहुत गंदी दिखती है बट इट टेस्ट ऑसम। एंड इवन इफ आई से इट डजंट टेस्ट गुड, इतना याद रखिए कि इट इज हेल्दी फॉर यू। अगर आप कोई पसंद वाली चीज़ इतनी खाते हो, इफ यू हैव लाइकिंग फॉर समथिंग, आप बाउल भर के खाते हो, कैन यू नॉट हैव अ स्मॉल क्वांटिटी 3 to 4 spoons of something that you don't like? Why? थोड़ा सा खाइए उसको, इट इज गोइंग टू हेल्प यू विथ योर हेल्थ। तो डोंट बी चूजिंग, हर एक चीज़ को ट्राई कीजिए। डेफिनेटली 10 न्यू चीज़ आप जब भी ट्राई करोगे उसमें से आपको 4 से 5 चीज़ें ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि टेस्ट तो आ जाएगा आपको, लेकिन वो इधर बच्चों में आपको बोल रही हो ये आपके इधर जो बैठा है ना, नहीं मैंने पहले मम्मी को बोल दिया मुझे नहीं अच्छा लगता है, यहाँ पे जो बैठा है ना कि नहीं मैंने तो बोल दिया नहीं अच्छा लगता तो मैं अभी कैसे खाऊं, फिर मम्मा बोलेगी कि हाँ देखा ना खाया। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, डोंट जस्ट वरी अबाउट ऑल, इफ यू लाइकिंग इट ईट इट, ट्राई। जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं खा पाओगे। जस्ट ट्राई, एक्सप्लोर योरसेल्फ। हमारे सेंस और हर एक सेंस ऑर्गन को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। आपकी योगा टीचर आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में मेडिटेशन में बताया है ना आपको? यस, बताया है ना? यार मेडिटेशन हो गया, मैं एक बार ले चुकी हूँ आपको। ओके, एटलीस्ट यू ऑल नो व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? Yes. यस, Yes. टेस्ट इज वन ऑफ इट, ठीक है, टेस्ट इज वन ऑफ इट। या लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, टेस्ट इज वन ऑफ इट। तो आप टेस्ट को जब तक टेस्ट करते नहीं हो, कुछ खाते नहीं हो, हाउ विल यू रियलाइज? आप अगर कुछ सुने हो, आपको कुछ सुनने में नहीं अच्छा लगता, यू डोंट लिसन इट अगेन ना, वापस सुनते नहीं हो ना,
कुछ देखा लेकिन वो देख के अच्छा नहीं लगा, वापस देखते नहीं हो ना, लेकिन कम से कम आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा ना। ऐसे ही आपके टेस्ट बड्स को भी ग्रो करने के लिए अलाउ करो। टेस्ट करो, नहीं अच्छा लगा मत खाओ, वेरी सिंपल। ओके, डिड यू गेट दैट? सो ऑन एंड होल the gist of all the things is moderation. Whether it is sleep, whether it is physical activity, whether it is food. अभी बच्चों जाके ये नहीं बोलना, भारती मैम ने बोल दिया था कि फिजिकल एक्टिविटी चाहिए इसलिए हम सिर्फ खेलेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। हर एक चीज में मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इक्वल बैलेंस मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस स्ट्राइक करना। हर एक चीज का मजा लो लाइफ में। सो भी रहे हो तो कुंभकर्ण की तरह मत सो, अपनी रेगुलर वीकेंड्स पे यू कैन, डेफिनेटली वीकेंड्स पे यू कैन स्लीप। आई डोंट टेल यू कि मत सो, अच्छे से सो वीकेंड्स पे, बट देन हर एक चीज में बैलेंस स्ट्राइक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, ओके, हियर आई एंड द सेशन ऑफ हेल्दी किड्स वर्कशॉप and I open the question answer session.